अक्सर ही इंसान के ज़िंदगी के 2 दिन जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, वो मनाए जाते हैं, पर प्रभु यीशु के लिए वो 3 दिन जो हैं ख़ास मायने रखते हैं, मनाए जाते हैं। For every person, there are 2 days that are celebrated for in their life very greatly. But for एक Christ Jesus, there are 3 days. एक खुशी का दिन होता है और एक गमी का दिन होता है। You know, one is a day of happiness, the other is a day of sadness. और खुशी का होता है जब उसका जन्म होता है, तो गमी का होता है जब उसका मरना होता है। You know, the day of happiness is when the child is born, the day of sadness is when that person dies. इंसान की पूरी जिंदगी एक छोटे हाइफन या डैश के साथ जो है उसी में उसकी तुलना कर दी जाती है। You know, the life of a man is akin to a hyphen or a dash. It's that small little dash. आप किसी जिसका देहांत हो जाता उसकी तस्वीर के नीचे जब देखें तो एक सन जो है जिस दिन वो पैदा हुए हैं और एक सन जहां उनका देहांत हुआ और बीच में एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, वो उसकी जिंदगी होती है बस। If you look at the picture of someone who's passed on, you see that there is a year that marks the year of birth, there's a year that marks the year of their death, and in between there's a hyphen or a dash that represents their whole life. चाहे वो एक दिन, एक घंटा या कितने ही साल जिंदगी जिया हो, और सबकी जिंदगी वो छोटे डैश या हाइफन से ही वो डिस्क्राइब या वर्णन कर दी जाती है। Whether that person lived for an hour, a day, or for many, many years, the whole life of every person is described by that little hyphen or dash between the 2 years. अगर वो उनकी कब्र पर पत्थर लगाया जाए तो वो अगर वो ज्यादा जिया हैं तो लंबी खींचेंगे नहीं लाइन, लाइन जो है एक छोटा हाइफन ही लगेगा। And you know, when the gravestone is made, just because the person has lived very long, the line, the hyphen won't be made long, it won't be extended, it will still be the same size, small hyphen. अगर वो बहुत बड़े मंत्री हों या बहुत बड़े जो है हस्ती हो, बड़ी शख्सियत हो, तो उनके बारे में अगर कोई ऐसे या कोई उसकी बायोग्राफी लिखी जाए तो उसके अंदर भी वो सिर्फ एक छोटी हाइफन से ही उसका वर्णन खुलासा कर दिया जाता है। Even if it's a very important, a very significant personality, whether they are a senator or somebody, even for them, that even when a biography is written, their life is in that hyphen. और ये 2 दिन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास माने जाते हैं। And these 2 days are considered really पर significant. प्रभु यीशु की जिंदगी की जब बात आती है तो उनका जन्म और उनका मरण और जो तीसरा दिन है जी उठने का, वो सिर्फ उन्हीं के लिए मनाया जाता है और किसी के लिए ये नहीं मनाया जाता। But when it comes to Christ Jesus, there is his birthday, there is the day when he died, but there is a third day on which he rose up that is celebrated. एक जो तीसरे दिन की वजह से ही क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है, ये सब चीजों से, सब फिलॉसफी से, सब फलसफों से जो है अलग और भिन्न कर देता है इसे। And it is because of the third day that the Christian faith is different from all other religions and all other philosophies. ये तीसरे दिन की वजह से हमारी जिंदगी की जो आशा है वो बड़ी फर्क हो जाती है। इसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं फर्क हो जाती है। इसकी वजह से हमारी रोजाना की जो प्रैक्टिस है मसीही जिंदगी की, वो फर्क हो जाती है। And the third day changes everything about our lives, the way we hope, the way we live, the way we do everything. आज जब हम यरूशलेम की ओर, इस्राएल की ओर अगर हम जाएं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की समाधि नहीं पाई जाती है। And if you go to the land of Israel, you won't find a monument in the name of Jesus. और वहां पर जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हम खाली कब्र को विजिट करके देख कर आ रहे हैं। And when people go to that place, they say we went there and saw an empty grave, we visited that and came back. उसको टूरिज्म की तरह से या जो दृश्य देखने की तरह से वहां पर जाया जाता है, ना कि माथा टेकने के लिए या वहां पर जो फूल चढ़ाने के लिए या किसी तरीके की वहां पर कोई भक्ति करने के लिए नहीं जाया जाता है। And people go there for tourism, for sightseeing. They don't go there like it's a place where you have to go and present flowers or bow down and make a pilgrimage. क्योंकि वो जगह जो है वो खाली है, प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है।
Because that place is empty, Christ is not in that grave. और प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में जी उठे हैं, जिसकी वजह से जो है आज का दिन जो है मनाया जाता है। And the Lord Jesus has risen from the dead, and that's why we celebrate this day. ईस्टर जो वर्ड है बाइबल में नहीं पाया जाता है। The word Easter is not found in the और Bible. बाय द वे मैं बता देना चाहता हूँ कि हम ईस्टर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। And I want to tell you, we do not celebrate Easter. और अगर किसी को इसका मायना नहीं पता है या पता भी है तो इसमें आप ये मत सोचिए कि पता नहीं मेरे को क्या है या क्या चीज होती है, तो आप उस पर इतना ज्यादा नहीं भी जानते तो भी अच्छा है, जानते तो भी अच्छा है, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देने की जरूरत है। You know, whether you know the meaning of Easter or not, it does not matter. It's not something you should spend your time thinking about. बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको कहा जाता है रेज़रेक्शन या पुनरुत्थान, The word that is used in the Bible is the word resurrection, जिसका मतलब है जी उठना, which means to rise up from the dead. मुर्दों में से दोबारा जिंदा हो जाना, To rise up once again to life from death शारीरिक तौर पर, in a physical manner, in a bodily सिर्फ fashion. आत्मा ही नहीं जिसे भूत या किसी इंसान की आत्मा कहते वो नहीं, बल्कि बॉडीली फॉर्म में शारीरिक तौर में जो पहले प्रभु यीशु मसीह का शरीर था बिल्कुल हूबहू उस शक्ल में प्रभु यीशु मसीह जी उठे। Not just as a spirit or like a ghost, but in very bodily form, Christ Jesus rose up from the dead. और इस तरह प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहे और परमेश्वर की बादशाहत की बातें उनको सिखाते And रहे। after rising up, Christ spent 40 days with his disciples and he taught them the things of the kingdom of और God. 12 फर्क तरह के लोग और वर्ग के लोगों को प्रभु यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए, उन पर प्रगट हुए, उनसे बातचीत करी, उनके साथ उठे बैठे खाना खाया, उनको कई बातें सिखाते रहे। And Christ met 12 different groups of people in those 40 days and he sat with them, talked with them, ate with them and taught them the things of the kingdom of लोगों God. ने उनको देखा, उनसे बातचीत करी, उनसे सीखा और कई दिन तक 40 दिन जो है उनको सिखाते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। And people saw him, they spoke to him, they sat with him, and for 40 days they had a conversation with the risen जीसस Lord. के मरने के बाद जो है प्रभु यीशु के शागिर्द भी खुद मायूस हो गए, निराश हो गए और बिल्कुल उनके अंदर भी निराशा आ गई थी। You know, at the death of Jesus, the very disciples, the apostles of Christ were very disheartened. और 21 अध्याय अगर जॉन्स गॉस्पेल को हम निकालते हैं तो वहां पर पता चलता है कि पतरस जो उनका एक अगुआ माना जाता है, उनमें से एक मेन जो उनके डिसाइपल्स में था, वो खुद इतना नाराज, मायूस और कंफ्यूज होने की वजह से वो भी प्रभु यीशु की साथ जो उसका विश्वास था वो भी खत्म हो चुका था, वो भी निराश होकर सब कुछ छोड़ के जा चुका था। And in the Gospel according to John chapter 21, it said about Peter that though he was a strong disciple of the Lord, at the death of Christ, he got so disheartened that his faith in Christ was broken down. आप पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 21 अध्याय यूहन्ना की इंजील, तो आप वहां पर देखें कि जब पतरस चले गया दोबारा मछली पकड़ने के लिए, उसके साथ दूसरे शागिर्द भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ हो लिए। We read in John chapter 21 that when Peter's faith was broken and he went back to fishing, the other apostles, the other disciples also left and went about their own business. क्योंकि कईयों का ईमान पतरस के कारण बड़ा अच्छा टिका हुआ था, पतरस गया तो उनके साथ उनके अंदर भी वही निराशा आ गई। Because a lot of them had their faith dependent on the faith of Peter. When Peter's faith was shaken and he walked away, they also walked away. पर यीशु मसीह वहां पर उनके पास जब वो मछली पकड़ने के लिए दोबारा गए थे तिब्रियास की झील के पास, तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचते हैं। But Jesus appears to these disciples when they go to the Sea of Tiberias for fishing. और वहां पर जो मछली पकड़ने के लिए गए थे, जिस तरह से उनकी जिंदगी में पहले हुआ था, पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी। And like had happened in their life before, while they went fishing, they had tried to catch fish all night long. पूरी रात लगे रहे पानी में, कभी इधर जाल डाल कभी उधर जाल डाल, पर कहीं उनको कुछ भी ना मिला। And all night they tried to catch fish. Sometimes they're casting the net on one side, sometimes on the other side, but they could not catch any उनको fish. कुछ भी नहीं मिला। They got nothing. पर जैसे ही वो बिल्कुल सुबह हो रही थी, भोर का वक्त हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास उस झील के किनारे उनको दिखाई देते हैं। But as dawn broke through, Christ Jesus appeared to them near the sea. यीशु मसीह उनसे कहते हैं, बच्चों
क्या तूने कुछ मछली पकड़ी? And Jesus asked them, children, have you caught any fish? वहां पर जो यीशु का लहजा है वो उनको मित्र, दोस्त, शागिर्द नहीं है। लहजा जो है जैसे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है उस प्रकार का था। You know, and the approach of Christ to his disciples at that time is not one of a friend or a teacher, but he looks at them as his children. क्योंकि उनका जो विश्वास था वो कुछ बड़ा नहीं था, बल्कि विश्वास में अभी भी बहुत निराश, मायूस, बिल्कुल खाली हो चुके थे। It's because their faith had not grown up, they were still very disappointed and disheartened. तो यीशु उनसे पूछते हैं क्या तूने कुछ पकड़ा है? So Jesus asked them, children, have you caught anything? पर उनके पास कुछ भी नहीं था। But they had nothing. जैसे वो किनारे पर आए, यीशु ने पहले उनके लिए मच्छी जो है बनाकर बिल्कुल ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा हुआ। And as they came ashore, Christ had already prepared fish as breakfast for them. यीशु वहां पर उनको कुछ बता रहे थे Jesus was trying to tell them something at that place. कि रात में आपको कुछ नहीं मिलेगा, That you will find nothing at night. क्योंकि वो रात में मछली पकड़ रहे थे। Because they were trying to catch fish all night. तो यीशु उनको स्पिरिचुअली तौर पर बता रहे थे कि तुम जब तक ज्योति में, प्रकाश में, रोशनी में नहीं आते तुम्हें कुछ नहीं मिलने का है। Jesus was trying to teach them a spiritual lesson that unless you come out of darkness into light, you will not receive anything. तुम्हें पता क्यों नहीं चल रहा है? यीशु बता रहे हैं कि मैं अंधकार पर जो है फतह पा चुका हूं, जीत पा चुका हूं। जहां पर जीसस पहुंचते हैं वहां पर रोशनी आ जाती है। And what Christ is communicating to them is he has won the victory over darkness. Where Christ has appeared, there is light.